we have different techniques to represent the sloping conditions, to analyze the slope, to measure the slope. So I discussed with you how to construct the cross profile and how to construct the longitudinal profile in zigzag manner or in a curvature. Today I want to discuss with you the different type of profiles, how they are represented. So on the basis of it is the slope analysis. While analyzing the slope, so we have the profiles. In profiles, it is based on the nature of contours. So contours are of different shape, size, order. Sometimes contours are like in this order, or some contours are like this. So it is like this, and some of the contours are like this, and so there are the different types of contours here. So I can say here. In this, when we construct the profile, suppose we are constructing the profile of this line. So this is A and B. And we construct the profile along this line, C and D, E and F, G and H. So there are the 4 profiles. So while constructing these profiles, when we make the 3-dimensional, so we used to say it as a block diagram. But if we are not constructing the block diagram, then what to do? So we simply construct a profile, and on the basis of the contour values, say value of say 100, this is 200, 300, this is say 400 value, 500, 600 contours, 700. So there are the contours of different values. On this profile, when we construct the profile, we take the A and B. On the same profile, and if we superimpose all the profile on one scale, so suppose A and B, suppose we are constructing, we take the value where these lines are cutting each other, and we construct say 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 meter, maybe. It depends on the nature of contour values. Suppose here we have this is A and this is B. A to B contours appear like this, suppose. But in C and D, if contour appears like this, C and D, it is like this. This is line number 2. This is number 1. If we see from this side, then पहले ये होगा, फिर ये हम अगर इधर खड़े हैं तो कैसा दिखाई देगा? This is number 2 line, this is number 3 line, this is number 4 cross section line. Suppose if we take this E and D, if it is E is here and D is here,
and there is one more. Suppose ये हमने अपना क्या करें कि मैं ऐसे कर दूँ, ये ऐसे ही depends कंटूर की क्या वैल्यू गई है. And the last one, number 4 line is, say number 4 line is like this, number 4 line is like this. Suppose it is number 4, H. This is H and G. So this line is like this is G. G is here. So these are the 4 different lines. I simply superimpose on one all the cross sections on one projection. So this is called superimposed projection or superimposed profile. So all are superimposed on each other. So this is called superimposed profile. Superimposed profile means on one scale we imposed it. But if we are looking from this side, can we see all the peaks? Sometimes if we see the mountain range, एक रेंज के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, ऐसे रेंज दिखाई देती है ना. तो जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले फ्रंट लाइन दिखाई देती है. अगर सेकंड लाइन रेंज हल्की है, उसकी कोई चोटी ऊपर पीक ऊपर निकली हुई है तो सिर्फ पीक दिखाई देगी, वो आगे वाले में ढक जाएगी. तीसरे वाले का कुछ पोर्शन दिखाई देगा. तो इसी तरह अगर यहाँ से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या ये सभी पीक्स दिखाई देंगी? नो. क्या क्या दिखाई देगा? सबसे एक नंबर लाइन कौन सा है? ए एंड बी दिखाई देगा. ए यहाँ है, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा. तो ए एंड बी के नीचे, ए एंड बी के नीचे ये आ गया ना, ये लाइन सी है ना, ये नहीं दिखाई देगी ना. अगर इसको हम मिटा दें तो यहाँ से तो ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसके पीछे दिखाई नहीं देगी. और इसके पीछे में ई एंड डी ये दिखाई देगी. ये लाइन, ये वाली लाइन, ये ई इसके पीछे है. पहले तो सबसे आगे वाली दिखाई देगी ना, तो ये दिखाई देगी ये लाइन ई वाली. क्या ई वाली लाइन दिखाई देगी? क्योंकि वो एक माउंटेन आगे वाली उसके पीछे में उससे नीचे चली गई. So this line will not be visible here. You can see. ये लाइन भी दिखाई नहीं देगी. Then इसके बाद ये लाइन दिखाई देगी हमें, ये भी दिखाई नहीं देगी. सबसे नीचे वाली लाइन दिखाई देगी. सबसे नीचे वाली लाइन नहीं है, ये भी दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये लाइन दूसरी है. बी 2 नंबर की लाइन है, ये भी नहीं दिखाई देगी हमें. ये और इसके पीछे ये भी दिखाई नहीं देगी. मीन्स फ्रंट लाइन के पीछे, फ्रंट माउंटेन रेंज के पीछे में फ्रंट रेंज से कम हाइट की कोई माउंटेन है तो आपको दिखाई नहीं देगी ना. तो जो दिखाई देगी हम सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड प्रोफाइल. ये तो सुपरइम्पोज्ड प्रोफाइल था. अब जो दिखाई दे रही है उसके लिए ये सबसे आगे वाली, ये 2 नंबर की ये नहीं दिखाई देगी, सिर्फ ये इसके पीछे चलेगी. उसकी हाइट कम है, इसकी हाइट कम है और इसकी भी हाइट कम है. इस फ्रंट लाइन के पीछे ये सारी की सारी ये चली जाएगी. देखिए फ्रंट लाइन दिखाई दी. कैन वी सी बी हियर? सी एंड डी. सी में ये दिखाई देगी, इसके पीछे और ये मानो इसका सी ये है, फिर ये दिखाई देगी. लेकिन सी के पीछे ये जी है, ये सी है, इसके पीछे जी है. ये लाइन जी की है. जी इज दिस लास्ट वाली. तो ये दिखाई देगी क्या हमें? यहाँ ये दूसरे वाले लाइन में ये नहीं दिखाई देगी. और
इसमें दिस इज हियर, ये दूसरे वाली लाइन है, ये दूसरी, और ये लाइन तीसरी है, ये भी दिखाई नहीं देगी। और उसमें अब हमें एक्चुअली क्या होता है, लाइन नंबर 1, 2, 3 को डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, डिफरेंट शेड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच लाइन इज इन डिफरेंट लेयर्स। तो कई बार ऐसे होता है ना, एक माउंटेन रेंज, उसके पीछे दूसरी रेंज, उसके पीछे तीसरी रेंज। हो सकता है हम यहाँ से सामने से देखते हैं तो ये आधी दिखाई दे, इसकी कुछ चोटियाँ दिखाई दे, फिर ये दिखाई दे। हमें सब तो दिखाई देगी, जरूरी नहीं है ये इससे भी ऊंची हो, ये ऊंची हो, ये इसकी हाइट कम हो और इसकी हाइट ज़्यादा हो, तो ये दिखाई देगी और ये दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। तो जितना पोर्शन दिखाई देता है, अगर ये लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाली जी कौन सी है, जी ये दिखाई देगी, तो ये दिखाई, ये लास्ट वाली लाइन है, और ये ई है, 3 नंबर की लाइन है, ये 4 नंबर की लाइन है, तो 3 नंबर लाइन दिखाई देगी क्या हमें, ये यहाँ दिखाई देगी। तो ये 4 नंबर की जो लाइन है, ये जो 4 नंबर है, इसकी ये लाइन दिखाई देगी, इस 3 की ऊंचाई ज्यादा है। नंबर 3 इज हैविंग, इसको हम मिटा दें, ये यहाँ से जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना रखते हैं। फिर ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, इसकी ये लाइन, ये स्लोप दिखाई देगा नहीं, इसको सो whichever the mountain ranges are visible, suppose ये लास्ट की सबसे लास्ट वाली है, लास्ट वाली है तो इस ये ऊंची है ना, उससे पहले 3 नंबर की, तो 3 नंबर के पीछे ये 4 नंबर की हाइट कम है ना यहाँ, तो ये दिखाई नहीं देगी, इसको कम कर देंगे। लेकिन इस 4 नंबर के नीचे ये 3 नंबर की हाइट कम आ जाती है, ये दिखाई देगी। तो इसको, इस प्रोफाइल को, अब इसके नीचे ये 2 नंबर ये है, ये भी दिखाई नहीं देगी। यानी कि जो रेंजेस अब हम देखते हैं यहाँ से सामने से, so whatever the ranges are visible, only we can see them. तो सबको हम नहीं देख सकते एक दूसरे के पीछे, जो दिखाई देती हैं, such type of profiles are known as projected profiles. Projected profile. I hope you came to know superimposed profile, and it is projected whatever the profiles are visible. Wait, Naman. And yes, you may ask your question. Contours on the basis of the height we obtained from the toposheet. टोपोशीट जो आपको मैंने टोपोशीट कल दिखाई थी, सब आप देख रहे हैं, उसमें कॉन्टूर लाइंस होती है ना, these lines are there. So whatever लाइन से हमें टोपोग्राफी का तो पता नहीं चलता जब तक हम प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। Contours of these, but how they look like, it is reflected by the graph. So that's why it is, वो उसमें दिखाई देता है यहाँ से equal height की लाइन। But there is third type of profile also, that is composite profile. Composite मतलब skyline. So that is the, this is number 1, this is number 2, number 3 is composite profile. Means skyline. समझने के लिए मैं लिख देता हूँ skyline. Skyline means from this side if we see which is the largest point, highest point, कैसा दिखाई दे रहा है? फर्स्ट रेंज का भी दिखाई दे सकता है, सेकंड रेंज का भी कोई पीक हो सकता है, और थर्ड रेंज का भी कोई पीक हो सकता है। Like this is projected profile मतलब कंपोजिट, यानी कि हमें ये सब मिटा दीजिए, इसमें क्या दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा, तो इसके नीचे वाले ये मिटा।
हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे स्काई लाइन में ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब 4 प्रोफाइल है, हमें सिर्फ ऊपर वाली लाइन को मैंने रख दिया, बाकी को सबको मिटा दिया। ऊपर वाली लाइन हो सकता है, ये हो सकती है, ये चोटी, दिस पीक में बी फ्रॉम द नंबर 2 लाइन, नंबर 3 लाइन, दिस पीक में बी नंबर 4th लाइन, इट डिपेंड्स। कोई पीक ज्यादा ऊंची है, साइड वाले की कोई हाइट कम है, सो व्हाटएवर द स्काई लाइन इज विजिबल, सो व्हेन द स्काई लाइन इज देयर, दैट इज कॉल्ड composite profile. So there are the 3 different type of profiles we generally use to observe the topography with the help of profiles and to analyze the slope we came to know. So one is the